مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں 2016 والے حالات واپس آنے چاہیے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے حق میں سب کچھ کر رہا ہے۔ ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 16 کے جو حالات تھے نا کہ اللہ کرے کہ وہی حالات واپس آئے، جو آپ کو مائنس کرتے رہے آج خود مائنس ہو رہے ہیں۔ وہ میں نے تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا، یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آرمی ہاؤس اور GHQ پر حملہ کرے گا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ PDM آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی۔ فہد امین کی رپورٹ۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سردار ایاز صادق کی رہائش گاہ آمد، بڑے بھائی سردار محمود صادق کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیے، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ عدلیہ کے خیر خواہ ہیں، ادارے کی کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے تو اس پر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے۔ جب آپ GHQ پہ حملہ کریں گے اور کو کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ والا حصار پہ جائیں گے، آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب تو، لہٰذا اس حوالے سے بالکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات سے ہی معیشت کی بہتری ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ PDM آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی۔ اب نئے الیکشن ہوں گے، اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پہ کھڑا کر کے چلائیں۔ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لیے مفید ہوگا۔ PDM انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور انتخابی اتحاد میں زیادہ سے زیادہ ہم علاقائی سطح پر ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت دیگر امور طے کیے۔ PDM سربراہ نے شہباز شریف کو مہنگائی کم کرنے اور انتخابات کے لیے حکمت عملی بنانے پر بھی زور دیا۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ چیئرمین PTI کی سیاست تضادات کا مجموعہ ہے۔ اس شخص نے پہلے امریکہ پر الزامات لگائے، اب محنتیں کر رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال میں معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے اصل مدعی ریاست ہے۔ میں نے بھی جو دعویٰ رکھا ہے 10-15 سال پہلے کا کہ اس کا ایجنڈا ہی پاکستان کو کمزور کرنا، اور پھر اس نے اپنے 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت کا قتل کیا، ملک کو وہاں پہنچا دیا کہ اب کوئی بھی آئے تو وہ اٹھا نہیں سکتا اس کو دوبارہ۔ سزا قوم کو مل رہی ہے، تو ریاست کے خلاف ان کی جو ذہنیت ہے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس وقت بھی سرگرداں ہے۔ امریکہ کے خلاف جب سوچ رہا تھا کہ یہاں پاکستان میں امریکہ مخالفت کا چورن اچھا بکتا ہے تو کاغذ بھی جھوٹا لہرایا اس نے، اور اب ترلے بھی انہی کے کر رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے ہمیں پہلے دن سے معلوم ہے کہ اس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں میئر کا انتخاب فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر کراچی سمیت سندھ بھر سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد، عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر سمیت سندھ بھر سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ٹویٹ کر کے جیتنے پر امیدواروں کو مبارکباد پیش کی اور سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے مرتضی وہاب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں پیپلز پارٹی پر بھروسہ کرنے پر عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر کے لیے سلمان مراد امیدوار ہوں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد اور میئر کراچی کے لیے ہمارا امیدوار ہوگا مرتضی وہاب صدیقی۔
मेयर कराची के लिए नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची वालों की उम्मीदों को पूरा करेंगे, हंगामी बुनियादों पर मसाइल हल किए जाएंगे। हैदराबाद के मेयर के लिए काशिफ शोर के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि डिप्टी मेयर के लिए सगीर कुरैशी उम्मीदवार होंगे। मेयर सक्कर के लिए अरसलान इस्लाम शेख और बेनजीर भुट्टो के आबाई शहर लड़काना के मेयर के लिए अनवर महर का नाम बतौर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। मीरपुर खास के मेयर के लिए अब्दुल रऊफ गौरी उम्मीदवार होंगे। आइंदा माली साल के बजट में मखसूस इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई है। इम्पोर्टेड मोबाइल मज़ीद महंगे होने का इम्कान है। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर, फानूस और LED भी महंगी होंगी। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल बजट में मखसूस इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर, फानूस और LED भी मजीद महंगी होंगी। दीगर आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने का फैसला। 55 अरब रुपए तक आमदन मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर 25% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड मेकअप के सामान, इम्पोर्टेड कलर्स और डायर्स, पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक पर सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। मौसीकी के आलात, ब्रांडेड हेडफोन्स, आईपॉड और स्पीकर्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% ही रहेगी। ब्रांडेड शूज, खवातीन के ब्रांडेड पर्स, शैम्पू, साबुन, लोशन, सनग्लासेस और परफ्यूम्स, इम्पोर्टेड बर्तनों पर भी सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड दरवाजों, खिड़कियों और बाथ फिटिंग्स पर भी सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह ही नाफिज रहेगी। सैनिटरी के सामान, कारपेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स और बेकरी आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 25% रखने की तजवीज़ है। इम्पोर्टेड गाड़ियों और इम्पोर्टेड प्राइवेट असलाह पर भी सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। वजारत सेहत ने आइंदा माली साल में 38 मनसूबों के लिए बजट मांग लिया है। वफाकी बजट 2023-24 में वजारत कौमी सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए से ज़ायद के प्रोग्राम और मनसूबे शामिल किए गए हैं। तफसील के लिए रिपोर्ट। वजारत सेहत ने आइंदा माली साल में 38 मनसूबों के लिए बजट मांग लिया। वफाकी बजट 2023-24 में सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड स्कीम भी नए बजट का हिस्सा। बजट दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए आइंदा बजट में 2 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तिम्स में 200 बेड पर मुश्तमिल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद में जिना अस्पताल के क़याम के लिए 2 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स, कैंसर अस्पताल के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए, शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में रेडियोलॉजी अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़, अमराज की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म का हेपेटाइटिस C प्रोग्राम भी नए माली बजट का हिस्सा बना दिया गया, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI की जानिब से कमीशन के इख्तियारात पर एतराज़ात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी गई है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को नोटिस देने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं, लिहाजा तौहीन नहीं बनती। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की शिक 6 और 10 को कलअदम करार दे दिया जाए, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि मेरा जाती मौक़िफ़ यही है, लेकिन हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत की। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के बाज़ इख्तियारात हासिल हैं। तौहीन का नोटिस कमीशन का फैसला था, सेक्रेटरी ने सिर्फ नोटिस जारी किया, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि नोटिस पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि नोटिस किसने भेजा है। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाक की हुकूमत ने लार्जर बेंच पर एतराज़ किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर करे, जबकि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीक़ैन भी जवाब जमा करा सकते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही को एतराज़ात खत्म करवा के तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे में कहा गया है कि जजेस के खिलाफ वफाक ने तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीक़ैन जवाब जमा करा सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर मज़ीद समाअत 6 जून को होगी।
पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। जज खालिद महमूद भट्टी ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। परवेज़ इलाही जाली भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर कार्रवाई अब 7 जून को होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 49 अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुतय्यन करने की मंजूरी दे दी है। शोहदा के लिए 4 करोड़ 95 लाख और हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9 अरब से ज़ायद रकम की भी मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेरे सदारत ECC का इजलास। 49 अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुतय्यन करने की मंजूरी। मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स और वजारतों के लिए ग्रांट्स भी मंजूर। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की पेंशन का मसला फौरी हल करने की हिदायत। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9 अरब 50 करोड़, NDMA के लिए 12 अरब, गवादर एयरपोर्ट के लिए 83 करोड़ 90 लाख, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 12 करोड़ और मुख्तलिफ महकमों के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ECC के इजलास में वजारत इंसानी हकूक के लिए 11 करोड़ 65 लाख, वजारत इत्तलात के लिए 70 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 51 करोड़, FC के लिए 6 करोड़ 60 लाख, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के लिए 34 करोड़ 80 लाख, शोहदा के लिए 4 करोड़ 95 लाख, पावर डिवीजन के लिए 9 अरब, पार्लिमानी अमूर के लिए 4 करोड़ 84 लाख और नेक्टा के लिए 11 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। कमेटी ने रेडियो पाकिस्तान और APP के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 314 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की तलब बढ़ी तो कीमत 8 रुपए इजाफे से 308 रुपए तक जा पहुंची। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर फरोख्त करने वालों की बजाय खरीदार बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे इजाफे से 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर मस्बत रुझान देखने में आया। सरमायाकारों ने हिस्से की खरीदारी शुरू की तो इख्तिताम पर मार्केट 314 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज की गिरावट के सबब कई कंपनीज के हिस्से की मालियत काफी गिर चुकी है। शेयर्स की कम कीमत को देखते हुए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 8वीं इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के 6 मुख्तलिफ सेशंस में 40 से ज़ायद तहकीकी मकाले पेश किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहना था कि तालीम और इक्तिसादी तरक्की के दरमियान गहरा ताल्लुक है। कोई भी मुल्क माशी तरक्की के अहदाफ तालीम को फ़रोग़ दिए बगैर हासिल नहीं कर सकता। तालीम की नई राहें तलाश करने वाली अक़वाम तरक्की करती हैं। खुशहाल पाकिस्तान के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने यह भी कहा कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए 500 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान दरामदी तेल और गैस पर इन्हिसार करने की बजाय मकामी वसाइल को इस्तेमाल में लाए। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदीब ने खिताब किया। प्रोरेक्टर UCP डायरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस डॉक्टर मोहम्मद अतहर सिद्दीकी ने भी खिताब किया।